کہانی کا آغاز ایک ریسٹورنٹ سے ہوتا ہے۔ ایک سولجر اولیگ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر ہوتا ہے۔ الینا اس سے پیار بھری باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک عام دن کی طرح دن گزرا ہوتا ہے، لیکن اچانک ہی لائٹس بلنک کرنے لگتی ہیں اور جہاز آسمان کے درمیان ہی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ ماسکو کے ارد گرد کے علاقوں کے علاوہ بیلاروس، یوکرین اور فن لینڈ کے کچھ حصے تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ سفید فام علاقوں کے لوگ حیرت سے خبریں سن رہے ہوتے ہیں۔ رپورٹر بیان کر رہی ہوتی ہے کہ باقی دنیا کی ممالک کے ساتھ رابطہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سب فوری طور پر یہ معلوم کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان علاقوں کے لوگوں کا پتہ لگایا جا سکے کہ وہ کن حالات میں ہیں۔ وہاں کے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی دہشت گرد حملے کی زد میں آ چکے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس بلیک آؤٹ کی وجہ کیا ہے۔ آخرکار تاریکی والے علاقے کو قرنطینہ زون اور روشنی والے علاقے کو دائرہ حیات کا نام دے دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ اپنے کئی ڈرونز قرنطینہ زون میں بھیجتی ہے، لیکن وہ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس فوج بھیجنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ فوجی جیسے ہی اس ایریے میں اترتے ہیں، ان کو ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلیک آؤٹ ہوتے ہی تاریکی میں ہر شخص موقع پر ہی دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ مچھلیاں، بلیاں اور تتلیوں جیسے جانور بھی دم توڑ چکے تھے۔ ایک ٹیم ایک اپارٹمنٹ کا معائنہ کر رہی ہوتی ہے جب کوئی ایک فوجی پر حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص ایک اونچی عمارت پر چھلانگ لگا کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر شخص مردہ نہیں ہے، لیکن اچانک حملہ ناقابل یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور گورنمنٹ کو کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ ان کی تحقیق کے مطابق ابھی تک بلیک آؤٹس اور اموات کی وجہ معلوم نہیں ہو پائی تھی۔ تمام سولجرز کو انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، جس میں دوسرا مرکزی کردار یوری بھی شامل ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چھٹیاں لی ہوئی تھیں، جو کہ ڈیمینشیا نامی مرض میں مبتلا تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے اس کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی ماں کو نیبرز کے گھر چھوڑ کر آنا پڑا۔ امید ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کی ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلے دن سولجرز کی ایک نئی ٹیم اپنی پوسٹ پر پہنچی۔ لیفٹیننٹ مرینا نے انکشاف کیا ہے کہ قرنطینہ زون کی فورینسک رپورٹس حال ہی میں ملی ہیں، جن میں ان کی موت کی وجہ نیوروٹاکسن زہر ہے، جو خود جسم سے ہی تیار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کسی چیز سے ان کے جسموں سے غیر معمولی طور پر انسانی جسم کو زہر پیدا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اولیگ اور اس کی گرل فرینڈ الینا اپنی پوسٹ پر کوارنٹائن زون جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے جہاز کے الارم ان کی تیاری میں خلل پیدا کرتا ہے۔ سولجرز کے پاس دشمن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ سامنے کی طرف کرنے لگتے ہیں۔ یہ منظر اگلی صبح تک رک جاتا ہے اور ان کو صبح سارا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ دشمن جنگلی ریچھ تھے جنہوں نے بہت سے سولجرز کو مار ڈالا تھا اور کئیوں کو کھا لیا تھا اور پوسٹ پر تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ انتہائی تباہ کن اور عجیب تھا، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ریچھوں نے حکومت عملی پر حملہ کر دیا ہو۔ اسی شہر کے ایک حصے میں ساشا نامی ایک شخص ہاسپٹل میں داخل ہے۔ جب سے بلیک آؤٹ ہوا ہے، ساشا کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اس کو عجیب سے خواب آ رہے ہیں اور اپنے سر میں عجیب سی آوازیں محسوس کرتا ہے۔ اگلے دن ساشا بے چینی اور سولجر کا خوف محسوس کرتا ہے جب وہ ریچھ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے ایک زینیا نامی ایک شخص ملنے آتا ہے جو اس کا ہمدرد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ ابھی بھی بہت سے لوگ قرنطینہ زون میں زندہ ہیں، لیکن انہیں کسی ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ساشا ان کے مائنڈ سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس وقت سرکل آف لائف کے پاس تھا جب بلیک آؤٹ ہوا تھا۔ یہ سب اس کے خواب اور ریچھوں سے لڑائی کی وضاحت کرتا ہے، جو کہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے والے شخص کی طرف سے ایک واضح منصوبہ ہے۔ زینیا نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ سب کیسے جانتا ہے، جس کی وجہ سے ساشا گھبرا جاتا ہے۔ وہ گارڈز کو بلاتا ہے، لیکن وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ میں زینیا سے باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر کمرے میں موجود نہیں۔ اسی دوران آرمی بیس میں فوجیوں کی کچھ ٹیمیں اپنے مشن کے لیے قرنطینہ زون کے مختلف حصوں کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد پہلی ٹیم قرنطینہ زون کے لیے شہر میں پہنچ جاتی ہے، جہاں پلین گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کا استقبال زندہ بچ جانے والے انسانوں نے کیا، جو اب کسی اور مخلوق کی ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں۔ وہ ٹینک، اسلحہ اور گولہ بارود لے کر سولجر سے لڑنے کے لیے کھڑے تھے۔ سولجر یوری اور دوسری ٹیم اولیا نامی پریس رپورٹر کے ساتھ ہیں۔ وہ باحفاظت ایک قصبے میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں انہیں اگلے کچھ دنوں کے لیے ایک مشاہدتی کیمپ کرنا ہوتا ہے۔ اسی دوران اولیگ تینوں گروپ ممبرز کے ساتھ کیروف نامی شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ چند دن گزر گئے اور سولجرز اپنے علاقوں میں نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دن آئیڈ نامی ایک شخص ساشا کے پاس آتا ہے اور خود کو کوئی انسان نما اجنبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ بلیک آؤٹ کے ذمہ دار کو تلاش کرنے کے لیے ساشا کی ذہانت کو استعمال کرنا چاہتا ہے، جو کوئی اور نہیں آئیڈ کا ہی بھائی را ہے۔ لیفٹیننٹ آئیڈ کو پکڑتی ہے اور بلیک آؤٹ کے بارے میں سب کچھ بتانے کا وعدہ کرتی ہے اور بعد میں اسے اریسٹ کرتی ہے۔
इसके बाद आइड को इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर जाया जाता है और उसके बोलने का इंतजार करते हैं। वो ये बताता है कि वो और इसके लोग मुख्तलिफ गैलेक्सी के सियारे के लोग हैं। वो बताता है कि हम लोग कभी बूढ़े नहीं होते और कुदरती आफात से नहीं मर सकते जब तक कि कोई उन्हें खुद ना मार दे। जब इनके सियारे का सूरज मर गया तो इन्हें एक छोटे सूरज के साथ किसी और सियारे पर मुंतकिल होना पड़ा। इन्होंने जमीन का इंतखाब किया और आइड और उसके भाई रा को जमीन की सतह पर भेजा ताकि जब तक बाकी सब एक बड़े जहाज पर पहुंचे तब तक वो इसे उनके लिए तैयार कर लें। 2 लाख साल पहले जब आइड और रा जमीन पर आए थे तो इंसान नफ्सियाती कुव्वतों के मालिक थे और टेलीपैथी और साइको का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह इन्होंने पिरामिड्स और दुनिया के दीगर गैर वाज़ेह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इस तरह की पावर्स आइड की किस्म के लिए परेशानी का बाइस बन सकती हैं। जब वो जमीन पर आए थे इसलिए रा और आइड ने एक बायो वेपन का इस्तेमाल किया ताकि नफ्सियाती कुव्वत को इंसानों से गायब किया जा सके। जमीन को गैर मुल्कों के लिए मौजू बनाने के लिए ये पहला कदम था, लेकिन अब रा पूरी इंसानी नस्ल को मिटाना चाहता है ताकि इसके लोगों के पास ये सियारा खुद का हो। इसने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए ब्लैक आउट और कई लोगों की मौत का सबब बना। इसका अगला कदम जिंदा बच जाने वाले इंसानों को आसमान के दायरे के अंदर मौजूद लोगों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेफ्टिनेंट को ये यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन इसके पास इस पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। वो पिछले महीने में जिसका सामना कर चुके हैं, इसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि एलियन 2 दिन में जमीन पर पहुंचने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि रा को शिकस्त देने के लिए इनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। जब सोल्जर्स अपने अगले कदम पर बात कर रहे होते हैं तो एक ओलेग और इसका ग्रुप एक बच्चे को पकड़ता है जो एक स्टोर से खाना जमा करने की कोशिश कर रहा था। शुरू में वो हमदर्दी महसूस करते हैं, लेकिन फिर रा ने लड़के को काबू कर लिया और इसी सोल्जर्स पर हमला करने पर मजबूर कर दिया। इन्हें ना चाहते हुए भी उसे गोली मारकर हलाक करना पड़ता है और लेफ्टिनेंट को सूरत हाल की खबर देना पड़ती है। ताहम ये लड़ाई का सिर्फ आगाज है। जब अंधेरा छा जाता है तो कैरेंटीना जोन से रा की हजारों कठपुतलियां तीनों आर्मी पोस्टों पर हमला कर देती हैं, जिससे कभी ना खत्म होने वाली जंग को जन्म मिलता है। यूरी और इसकी टीम की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो बेस पर इमरजेंसी का सिग्नल भेजते हैं और मदद के लिए आने का इशारा करते हैं। कमांडर फौजों को इस वक्त तैयार करता है जब अचानक हर तरफ से आने वाले इशारों की वजह से आसमान रोशन हो जाता है। जिंदा बच जाने वाले इंसानों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे इनका नुकसान करीब नजर आता है। अब इनकी वाहिद उम्मीद आइड है और इनकी खुशकिस्मती ये कि वो मदद करने को तैयार हो जाता है। वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि इन्हें साशा की मदद से रा का पता चलेगा। सिर्फ ऐसी ही सिचुएशन में इसके भाई को रोका जा सकता है। आइड फौजियों पर हमला करने वाले लोगों को कंट्रोल कर सकता है। लेफ्टिनेंट आइड और उसकी इंसानी साथी ज़ेनिया को फौजी बेस पर लेकर आता है, जहां इन्हें साशा को तलाश करना है और रा को तलाश करने में इसकी मदद करनी है। इस दौरान जूरी की टीम जमीन पर घात लगाकर हमला करती है और इसके साथी सोल्जर एक के बाद एक मारे जाते हैं। आखिरकार सिर्फ 2 बच जाते हैं, वो और ओलिया। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो इन्हें एक और ग्रुप तलाश करना होगा, लिहाजा वो एक गाड़ी पर सवार होकर ओलेग की टीम की तरफ जाते हैं। आइड साशा की तवज्जो मरकूज करने में मदद कर रहा है ताकि वो ये जान सके कि रा कहाँ है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार साशा इसे कैरोफ में एक फ्लिक बस इमारत के ऊपर इंसानी पुतलियों को कंट्रोल करते हुए देखता है। आइड से साशा को पुरसुकून होने में मदद मिलती है और वो फौरी तौर पर कैरोफ के लिए रवाना होने का मशवरा देता है। ये वो जगह भी है जहां ओलेग तैनात है और जहां ओलिया और यूरी की तरफ जाना है। आइड और टीम जाने की तैयारी कर रहे हैं जब इन्हें इत्तला मिली कि कठपुतलियों ने सर्कल ऑफ लाइफ पर भी हमला कर दिया है। मजीद वक्त जाया ना करते हुए आइड लेफ्टिनेंट और इसके सोल्जर्स कैरोफ के लिए रवाना होते हैं। साशा को बेस पर रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। कैरोफ के रास्ते में आइड से पता चलता है कि इसे साशा की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। इसने लड़के को पीछे रहने को कहा क्योंकि रा अपने मुकाम को ट्रैक कर सकता है, जिसका मतलब इन सब के लिए परेशानी का बायस हो जाएगा। जैसा कि इसने पेशन गोई की थी, रा ने साशा का मुकाम ढूंढ लिया, जिसके नतीजे में बेस पर कई मिसाइल दागे जाते हैं। सोल्जर जवाबी मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार पूरा बेस तबाह हो जाता है और अंदर मौजूद सारे अफराद मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट अपने गुस्से पर कंट्रोल खो बैठती है और आइड पर लोगों को मारने का इल्जाम लगाती है। दूसरी तरफ आइड का यह दावा है कि यह वाहिद तरीका था कि वो रा से बगैर किसी शुबा के बच सकते हैं। सोल्जर्स की मौत नागुज़ीर थी और वाज़ेह तौर पर इंसानियत को बचाने की जरूरत थी। अगली सुबह यूरी और ओलिया ओलेगा की टीम को ढूंढते हैं और थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट और इसका ग्रुप भी शामिल हो जाता है। सोल्जर्स को आइड और सर्कल ऑफ लाइफ पर हमला करने के बारे में सब कुछ बताया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो वाहिद इंसान है जो जमीन पर जिंदा है और इन्हें रा को रोकना होगा ताकि इंसानियत की बर्बादी को रोका जा सके। वो फ्लैग बेस बिल्डिंग तक जाने से पहले ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, लेकिन रास्ते में इनके टैंक पर इंसानी कठपुतलियों के एक बड़े हजूम ने हमला कर दिया।
एक आदमी धमाका खेज मवाद के साथ गाड़ी पर छलांग लगाता है और जंग शुरू करता है। फौजी टैंक के अंदर रहते हैं और इनके सामने मौजूद हजूम पर गोलियां चलाते हैं। वो रुकते नहीं हैं, इसलिए दुश्मन को टैंकों पर चढ़ने और आखिरकार फ्लैग बस इमारत तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। कमांडर्स और इसके सोल्जर दुश्मन को हटाने के लिए इमारत के निचले हिस्से में रहने का फैसला करते हैं, जबकि बाकी ऊपर चले जाते हैं। एक आखिरी शोडाउन में यूरी और आयड रॉ का आमना सामना करते हैं। यूरी इस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन रॉ इससे ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बजाय इसे आयड का सामना करना होगा। वो और उसका भाई आयड आपस में लड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से बढ़कर पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि कमांडर कठपुतलियों को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। जब इसके ज्यादातर फौजी मारे जा चुके होते हैं तो इन पर धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी पर हमला कर दिया जाता है। ये एक धमाके का सबब बनता है, जिसके नतीजे में तमाम फौजी मारे जाते हैं। कठपुतलियां अब अपने मालिक की मदद के लिए इमारत में दाखिल होने के लिए आजाद हैं। रॉ ने पता लगाया कि नीचे क्या हो रहा है और ये सबकी तवज्जो हटा देता है। आयड को हमले का मौका मिलता है। आयड रॉ के सीने को फाड़ देता है और वो चिप निकाल देता है, जिससे आखिरकार आयड अपने भाई को हलाक कर देता है। इसकी मौत के बाद आयड कठपुतलियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है और इन्हें एक साथ मार देता है। अब सिर्फ जिंदा इंसानों में यूरा, ओलेग, लेफ्टिनेंट ओलिया, अलीना और ज़ेनिया शामिल हैं। इन्हें फतह की खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। आयड आखिरकार ये जाहिर करता है कि इंसान गैर माकूल मखलूक हैं, यहाँ तक कि जब वो रहम करेंगे वो एक ना एक दिन तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लेंगे। यही वजह है कि रॉ इनकी नस्ल को खत्म कर देना चाहता था और अपने लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहता था। ताहम आयड का मकसद मुख्तलिफ है। वो खुदा बनना चाहता है और बड़ी ताकत चाहता है। वो ब्लैकआउट के बारे में बहुत पहले लोगों को आगाह कर सकता था, लेकिन वो इसके होने के बाद ही हरकत में आया। इसकी वजह यह है कि वो चाहता था कि इंसान मर जाए ताकि वो इसकी अहमियत को जाने और इसे अपने मसीहा के तौर पर देखे। लेफ्टिनेंट ने इसे गन की नोक पर पकड़ लिया। इस पर सिर्फ अपनी फैंटेसी के लिए अरबू को मारने का इल्जाम लगाता है। गोली मारने से पहले ज़ेनिया आयड पर चाकू लेकर भागता है। उसी वक्त पर ज़ानिया लेफ्टिनेंट को चाकू मारता है। वो इस वाकये में मारी जाती है। आयड उसको उलझाने के लिए खुद को उसके वालिद की शक्ल में बदल देता है, लेकिन इस बार ज़ेनिया अपने मंसूबे को देखता है। वो इसे छत से फेंक देता है और इसके साथ मर जाता है। अब सिर्फ जिंदा लोग यूरी, ओलेग, ओलिया और अलीना हैं। सब कुछ खामोश हो जाता है जब वो एक स्पेसशिप को जमीन पर उतरते हुए देखते हैं। स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और सब हमला आवरों का इंतजार करते हैं, लेकिन इनकी हरारत की वजह से कोई बाहर नहीं आता और हजारों एलियंस को क्रेव कैप्सूल में सोते हुए तलाश करते हैं। वो चंद मिनटों में उठने वाले हैं, इसलिए ग्रुप इनको मारने के लिए ही ऑक्सीजन सप्लाई को खत्म करना शुरू कर देते हैं। और जब वो बच्चों के हिस्से में पहुंचते हैं तो उनमें मासूम बच्चों को मारने की हिम्मत नहीं आती। आखिर में हजारों एलियन बच्चे कैप्सूल से बाहर आते हैं और अपने नए घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।